Sairam to all of you. So we were discussing the development experience of India and its neighbors. Neighbors means with Pakistan and China. So that's what we were discussing. You have seen India's development and these neighbors development like Pakistan, China. At the beginning there were similarities, like we three had 5-year plans. Almost at the same time we have started, and the importance given to the public sector, all those things you have seen. What were the similar points? Afterwards you have seen the development process in China. Okay, great leap forward movement, proletarian culture. Then what else? Commune system, that is collective farming and commune system. All those things we have seen. And the reforms in China started in 1978 in 2 phases that you have seen. And the last you have seen was special economic zone. So these much things you have seen in the case of China. And Pakistan also you have seen, like India, they also have the 5-year plan system. And Pakistan is the agricultural predominant economy. Most of the contribution, GDP contribution coming from agriculture. And they also have the public, like everything owned by the in beginning owned by the public uh, hand. It was in the government hand. All those things in the case of Pakistan also you have seen. Then we have done especially what is the condition of China now, what is the condition of Pakistan now, all those things you have seen. So in the case of Pakistan, you have seen it is agricultural predominant, so it is the economy is highly depending on agriculture. So in case of agriculture is good, their economy is good, GDP is good. Otherwise, if any flop in agriculture, again economy will hit by that. So that is the condition of economic development in Pakistan that you have seen. And the foreign exchange reserve also, they don't have much foreign exchange reserve. Foreign exchange is very important for the country, but they don't have because export itna nahi hai, especially when the agriculture product is, so harvest is not good. The export is not that good of Pakistan, so foreign exchange reserve की कमी है उनके पास. The only foreign exchange they get is from remittance from the Pakistani workers. जो भी पाकिस्तानी workers बाहर जाके immigrants के रूम में जाके काम करेंगे, वो लोग कुछ remittance देते हैं government को. That is the main part of their foreign exchange. That also you have seen. Then पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर लिया फॉरेन लोन में, and now they are finding it difficult to pay it back. So that is the condition of Pakistan you have seen. And GDP थोड़ा सा बन गया था till 16-17, GDP थोड़ा better हो गया था. Okay, growth 4.7% में आ गया था. Now there is political instability and also there was military interference, political stability due to all that. So 16-17 तक थोड़ा सा 4.7% rate growth सब हुआ था. Okay, that was 15-16 का बहुत ज्यादा था compared to the previous 8 years से maximum उनका अच्छा वाला GDP तो तब था. Okay, then so that is the conditions you have seen about Pakistan. और चाइना का क्या देखा था? प्री रिफॉर्म पीरियड में वो लोग कैसे थे? प्री रिफॉर्म पीरियड मतलब 78 के पहले वो लोग कैसे थे, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में वो लोग कैसे बन गए, वो भी देखा था आपने. प्री रिफॉर्म पीरियड में मतलब 78 के पहले वहां पर क्या क्या था? तब भी वहां पर हेल्थ फैसिलिटी तो अच्छा था. Health services, extension of basic health services was good even in rural areas in the pre-reform period. And there was commune system. You know, there was commune system in the pre-reform period. Commune system में क्या था? Collective farming था. Land तो government के पास रहते थे and they have to do the agriculture. ऐसे था pre-reform period में. Then extensive land reforms आ गया, great leap forward movement आ गया, ये सबसे उनका per capita income तो बढ़ गया था, but ज़्यादा नहीं बढ़ा था. But after the reform period, there was a very good development. Pre-reform period आपने पढ़ा वो तब great leap forward कब तब आया, तब वो सब pre-reform period है. 1978 के बाद ही
1917 में रिफॉर्म शुरू हुआ है। उसके बाद क्या चेंज रहा चाइना में? चाइना में कुछ चेंज हुआ क्या? रिफॉर्म के उनका जीडीपी बढ़ गया है, ठीक है। वो रिफॉर्म वो लोग कैसे लाए थे? स्टेज वाइज लाए थे, और आपने पढ़ा है वहां पर चाइना के बारे में जब पढ़े थे तो वो स्टेज वाइज लाए हैं, पहले स्मॉल स्केल फिर लार्ज स्केल ऐसे एक्सटेंड किए थे। चेंजेस, दैट्स द डेवलपमेंट प्रोसेस, ओके। तो उनका एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का डेवलपमेंट है। दे हैव डेवलप्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, लैंड रिफॉर्म्स और प्लानिंग असिस्टेंस के वजह से दैट पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इन द सोशल एंड इनकम ऑफ इंडिकेटर्स तो बहुत बढ़ गया। सोशल इंडिकेटर भी बढ़ गया, दैट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, हेल्थ बढ़ गया, एजुकेशन बढ़ गया, और इकोनॉमिकली भी डेवलप हो गया, इनकम भी डेवलप हो गया, ठीक है। सो ऑल दोस वाज द केस ऑफ चाइना यू हैव सीन। एंड इंडिया को तो आप लोग को पता है 1991 के बाद जो भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन सब हो गया, उसके बाद क्या डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, सो दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। देन कंक्लूजन में हमने देखा क्या क्या देखा? कंक्लूजन में इंडिया के बारे में आपने क्या, इंडिया पाकिस्तान चाइना के, इंडिया चाइना पाकिस्तान 5 डेकेड्स में बहुत ज्यादा डेवलप कर दिए हैं विद वेरिड रिजल्ट। सो वो रिजल्ट को अपन देखेंगे। इंडियन में क्या हुआ? इंडिया के प्रोग्रेस यू कैन से इट इज मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं। इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म वी विल से मॉडरेटली, because even now majority of the people, we have poor people, poverty abhi bhi hai India mein, still people depending on more, majority of the people depending on agriculture. So you can say, sorry, so you can say India's performance or Indian economy is moderately performing, it is performing only moderately. हो सकता है कि अभी ज्यादा मतलब परफॉर्म करें, बट आई मीन अभी जहां तक अपना इंफॉर्मेशन है उसमें से हम बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग मॉडरेटली, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर अंडर द पॉवर्टी लाइन एंड दे आर स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जैसे चाइना डेवलप हुआ है इतना अपने इधर डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो लैकिंग इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। रूरल एरिया में, कई रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। दिस लैकिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट्स इंडियाज कंडीशन। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी की बात करो, we have to raise the standard of living, because more than 1/4 the population below the poverty line. So that is India's condition. Okay, even though we have attained developments, okay, we have attained developments. If it's particularly asked, we have to say Indian economy has performed only moderately, because majority of the people still 80%, I mean majority, so you can say majority of its people still depend on agriculture, and infrastructure development is also not satisfactory. India have to raise the standard of living of people. That means standard of living भी improvement नहीं हुआ है, because what is the indicator of that? 1/4 of the population अभी भी poverty line के नीचे है इंडिया में. So that is the condition of India during the last 3 decades का बारे में, उसके बारे में conclusion हम बोल रहे हैं last 3 decades के बाद, ठीक है। अभी पाकिस्तान में कैसा है? पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, मिलिट्री कंट्रोल था, देन उन्होंने ज्यादा डिपेंड किया कि फॉरेन लोन लेके और फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन एड में ज्यादा डिपेंड किया। ओके, सो देयर इज आल्सो स्लो डाउन इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी। सो इंडिया को बोलोगे मॉडरेट, पाकिस्तान का क्या बोलोगे? स्लो डाउन। देयर इज अ स्लो डाउन ऑफ द slowdown of the Pakistan economy. बीच में आ गया था जीडीपी सब, बट कंक्लूजन में अपन ये बोलेंगे कि स्लो डाउन है। रिसेंट पास्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट सिचुएशन था, देयर वाज सम इम्प्रूवमेंट द सिचुएशन, हाई रेट जीडीपी आ गया था, बट जनरल कमेंट क्या है? जनरल कमेंट तो इंडिया के लिए भी बहुत इम्प्रूव हो गया है, बट वी विल से मॉडरेट। इन द केस ऑफ पाकिस्तान वी विल से स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी, इवन दो they had some improvement in the rate, GDP rate and all in the recent past.
15-16 अभी हमने देखा था कितना 4.5 कुछ उन्होंने इंक्रीज किया था. ओके, एंड रिकवरी स्टेज में बोल सकते हैं पाकिस्तान का. ओके, पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ रेट्स रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि 15-16 में हमने देखा था कि रेट ग्रो हो रहा है, सो इट इज इन द रिकवरी स्टेज. सो बहुत ही स्लो डाउन हुआ था, अभी रिकवरी कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि 16-17 में ग्रोथ 4.7% तक आया था, प्रीवियस 8 ईयर्स से कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट, अच्छा ग्रोथ हो गया था. सो देयर इज अ रिकवरी, देयर इज अ चांस ऑफ रिकवरी टू पाकिस्तान. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट चाइना, गिव मी अ मिनट बेटा, एक मिनट. Give me a minute, beta. Okay, give Yes, me a ma'am. minute. Okay. थोड़ा सा I'm very sorry, there was some disturbance. Very sorry. So what we were discussing? Pakistan. We were discussing about Pakistan. Are you all there? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm very sorry.
See, coming back to our question, we were discussing about Pakistan. तो पाकिस्तान के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे? Slow down. The Pakistan economy was slow. Performance was slow down. Okay, improving the situation, GDP situation improve हो गया था. So recovery it is showing. Okay, so due to the indicators, main indicators क्या है? GDP indicator हमने देखा है. So it shows a positive growth rate reflecting the economic recovery of Pakistan. What recovery? Economic recovery. So the points you have to remember. अभी पाकिस्तान के बारे में कंक्लूजन में आपको points क्या याद रखना है? Slow down of Pakistan economy. 1 point. Slow down of Pakistan economy. Because of, the recent political instability, then over dependence on foreign loan, and also their slowdown of Pakistan economy. 1 point. Then recent past में GDP आपने अभी पढ़ा था कि recovery दिखाया था. So you will comment the growth rate are showing that they have an economic recovery. ये है पाकिस्तान के बारे में. Then if you talk about China में सबसे प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम. वहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है. इवन ओनरशिप ऑफ लैंड भी नहीं है वहां पर. कलेक्टिव ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं है, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है. These are the major concerns. वो नहीं लिखना कि ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं है. That's not at all a problem. Okay, in the sense. So problem है, but we don't want to mention. The main problem is lack of political freedom. That is the problem in China. So over the last decade, but they use the market system without losing the political commitment. So you will see this, there is a particular term in the book. They have used the market system without losing the political commitment. So control के साथ उन लोगों ने market system adopt किया. पहले तो everything was fixed by the government. Then it was given to the open free market, demand and supply factor जो भी है. They have last 3 decades से उन लोगों ने market system adopt किया, free market system adopt किया. Okay, so and succeeded in raising the level of growth. They have succeeded. Level of growth तो बहुत ज़्यादा हो गया, उनका double digit में आ गया. और poverty alleviation में भी they have done very well. So when we talk about China, we have to mention there is lack of political freedom. Okay, and Pakistan के बारे में हमने बोला था कि political instability है. यहाँ पर हम लिखोगे lack of political freedom है. क्यों? Human right, political freedom नहीं है तो मतलब human right नहीं है. Human right is a major concern there. You know, the major concern of China is the human right is being denied. So over the last 3 decades, वहां पर क्या हो? मार्केट मैकेनिज्म शुरू किया इन लोगों ने. मार्केट मैकेनिज्म पहले तो फिक्स, द रेट्स वेर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ इट इज मार्केट सिस्टम, ओपन मार्केट सिस्टम है. एंड दे हैव सक्सीडेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ लेवल उनका बहुत ज्यादा हो गया है. ज्यादा मतलब डबल डिजिट्स में आ गया है. दैट्स अ गुड थिंग. एंड पॉवर्टी एलिविएशन भी उनका अच्छे से आ गया है. बिकॉज ये ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं दिया है, बट यूजिंग, दे आर गिवन द राइट टू यूज द लैंड. पहले तो गवर्नमेंट के पास था, फिर यूज करने का राइट उनको दे दिया है. तो उसमें से जो प्रॉफिट और इनकम आएगा, दैट इज द इनकम ऑफ द पीपल. सो पॉवर्टी, दे कुड alleviate the poverty to a great extent. So China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities. Market mechanism means open up the market. ठीक है, डिमांड और सप्लाई फैक्टर कंट्रोल उसमें से निकाल दिया है. सो दिस मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. उनका पहले तो सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस था. दैट इज व्हाई चाइना के बारे में बोलते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं. फर्स्ट, आई मीन इन द इनिशियल स्टेज ऑल दीस थिंग्स वर रेस्ट्रिक्टेड. Then China has introduced the market mechanism that has helped them to have additional social and economic development. Social opportunities, economic opportunities, and social and economic development, they have gained more due to application of market mechanism. Then there is a collective ownership of land. It's not individual ownership. Individual can use it, but the ownership is collective. They can cultivate it collectively.
Okay, collective farms है वहाँ, so collective lands are there, ownership is not given. Then China has ensured the social security in rural areas. जैसे लैंड देके उनको यूज करने के लिए देके पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी उन लोगों ने इंश्योर किया रूरल एरियाज में. Okay, then public intervention in providing social infrastructure brought positive result in human development indication in China. What is public intervention? State intervention or the government intervention was very good in providing social infrastructure. Social infrastructure like health ho gaya, health indicator is very good in China. Then education हो गया, ये सब public intervention के through, government intervention के through China में बहुत ज़्यादा develop हुआ है. So that is the condition of China. So you have seen what is the condition of India, what is the condition of Pakistan, what is the condition of China. China में development हो चुका, मतलब हो गया है. Okay, even though human right is a major concern, poverty alleviation भी अच्छे से हो गया है. Market mechanism have helped them to come up with social and economic development. Poverty भी alleviate हुआ है. They have retained a collective ownership of land, but they allow the individuals to cultivate land. So that's the condition of China. So these things I have already taught you in the class. Still, I was repeating it. So we will just have a recap what you have done. Okay. पहले हमने क्या किया था इसमें, because it's a very important chapter. You can see some tables also in this particular lesson. All those tables are important. That doesn't mean you have to memorize or have to by heart all these numbers. That's not the thing. But some of the numbers are also very important. So यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है from this question. हमने क्या पढ़ा था कंपैरेटिव एक्सपीरियंस में? सबसे पहले पढ़ा था कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, वो सिमिलरिटी क्या है, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना. व्हाट इज द डेवलपमेंट पाथ? देन चाइना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी. चाइना की इकोनॉमी हमने पढ़ा था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर एंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1978. उसके बाद जो भी आता है, थर्ड पॉइंट के बाद भी जो आता है वो रिफॉर्म के बाद वाला स्टेज है. फिर वहां पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्यूअल प्राइस? ड्यूअल प्राइसिंग क्या है? दो फिक्स प्राइस थे, एक तो गवर्नमेंट फिक्स करते थे, एक तो मार्केट. वो है फिक्स प्राइस में इनपुट्स दे हैव टू बाय एंड सम आउटपुट दे हैव टू सेल. देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये देखा था चाइना के बारे में. पाकिस्तान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज और इकोनॉमी में सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट था मिक्स्ड इकोनॉमी है. और उन लोगों का पॉलिसी क्या पॉलिसी में बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस देके लिया कि टैरिफ प्रोटेक्शन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो है पॉलिसी आपको मेंशन करना है. देन ग्रीन रेवोल्यूशन मेंशन करना है. देन दे गेव इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर इन 1970s, वो मेंशन करना है. एंड दे हैड स्टार्टेड द रिफॉर्म इन द ईयर 1988. पाकिस्तान में रिफॉर्म कब शुरू हुआ? 1988 में. That you have seen in the case of Pakistan. Then comparative study किया इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में. याद रखना ये सब टर्म्स. डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के हिसाब से कंपैरिजन पूछते हैं. डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के हिसाब से आपको क्या लिखना है? पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, then density of population, sex ratio, fertility rate, urbanization, ये सब है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के हिसाब से कंपेयर करना है. तो ये इंडिकेटर्स को याद रखना है आपको. एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का कितना है. एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वो अनदर इंडिकेटर है. डेंसिटी कितना है, अनदर इंडिकेटर. सेक्स रेशियो अनदर इंडिकेटर. फर्टिलिटी रेट अनदर इंडिकेटर. अर्बनाइजेशन, ये सब इंडिकेटर्स याद रखना है, उस हिसाब से लिखना है. कंपैरेटिव स्टडी डेमोग्राफिक पूछा गया तो ठीक है. और वहां पर देख लेना कि कहां पर रेट ज्यादा है, रेट कम है, वो सब. अभी ग्रोथ इंडिकेटर के हिसाब से पूछेंगे तो यू हैव टू मेंशन जीडीपी इन द केस ऑफ जीडीपी. ओके, सो दैट यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन इन जीडीपी ऑफ India, China and Pakistan because that is a good indicator given here. India में कितना है और China में कितना है, दो पीरियड में कंपेयर करके दिया है.
Then another term you have seen is purchasing power parity. वो भी आ सकता है, what is purchasing power parity? That can also be asked. Box में दिया इसका मतलब नहीं उसको नहीं आएगा. Okay, purchasing power parity, that is equality of purchasing power among countries. That shows, what does it shows? Equality of purchasing power among countries. 3-4 कंट्रीज को ले लिया, उनका परचेसिंग पावर को इक्वल करने के लिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड में लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? परचेसिंग पावर पैरिटी थी, पावर पैरिटी. सो दैट आल्सो वी हैव सीन. देन इनका सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टरल डेवलपमेंट. सेक्टर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ, देन क्या आता है, इंडस्ट्री में क्या डेवलप हुआ, सर्विस में क्या डेवलप हुआ. तो इनका भी कंट्रीब्यूशन में इसके हिसाब से देते हैं. सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, सर्विस सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों. तो उसका आंसर ऐसे देते हैं. एग्रीकल्चर का इंडिया में कितना है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? 17. चाइना में कम है 9, पाकिस्तान 25. चाइना में कम है, इसका मतलब याद करने के लिए बोल रही हूँ, वैसे चाइना में कम नहीं है अकॉर्डिंग टू द जीडीपी कंपैरिजन. ओके, 17, 9 एंड 25. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इंडिया में सबसे ज्यादा किस सेक्टर से है? इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से है बच्चे लोग? सर्विस सेक्टर. किस सेक्टर से है? From which sector India has the highest GDP contribution? Service sector. Okay, are you there in the meet? Am I there in the meet? Yes, ma'am. I was thinking I am out of the meet. अभी मैंने क्या बोला था आदित्य? जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंडिया का सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर. वेरी गुड. पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन किसमें से होगा? एग्रीकल्चर, सॉरी सर्विस सेक्टर ही है, उनका भी सर्विस सेक्टर है, सेकंड है एग्रीकल्चर पाकिस्तान का. ठीक है. और चाइना का एग्रीकल्चर 9 है, इंडस्ट्री 43 है, सर्विस सेक्टर 48 है. उस हिसाब से उसको पढ़ लेना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर में, उसके बाद ही है सर्विस सेक्टर. सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं. सो वर्कफोर्स में एग्रीकल्चर पहले आएगा इंडिया में. सो दैट इज व्हाट इन द एग्रीकल्चर यू हैव स्टडीड. उसके बाद आपने क्या पढ़ा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एक कल मैंने क्लास में पढ़ाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. ह्यूमन डेवलपमेंट किस क्राइटेरिया से हम ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हम मेजर करेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर लोग बहुत 10 साल तक जिएंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे. देन जीडीपी पर कैपिटा. इसका मतलब क्या है? एक जन को जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम जो बोलते हैं ना, जीडीपी पर कैपिटा. पर कैपिटा एक पर्सन को कितना जीडीपी अवेलेबल है, वो भी एक ग्रोथ इंडिकेटर है. और एजुकेशन, एजुकेशन कितना ईयर्स को स्कूलिंग मिलता है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कितने बच्चे लोग मरते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और कितने लोग इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन, नॉट सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन यूज करते हैं, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन. So all these are the indicators of human development. Human development indicators देखो तो चाइना का बहुत ज्यादा होगा human development index, because they have very good development in the infrastructure. Human development index 0.738 है चाइना का, 0.624 है इंडिया का, 0.550 है पाकिस्तान. ओके, सो वो इंडिकेटर्स याद रखना. व्हाट आर द डिफरेंट इंडिकेटर्स, उसी हिसाब से लिखना. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा था, ठीक है. और जीडीपी पर कैपिटा उसको याद रखना है. जीडीपी पर कैपिटा कितना है, चाइना का जीडीपी पर कैपिटा कितना है, वो सब याद रखने की चीज है. जीडीपी पर कैपिटा डॉलर में, ये यूनिफॉर्मिटी के लिए डॉलर में मेंशन करते हैं. यूएस डॉलर में 14,400 है चाइना का,
US डॉलर। ओके, सो वो सब याद रखना। देन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हमने अभी भी पढ़ा है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू, क्वेश्चन कैसे आएगा, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके नियति? यस मैम। सो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का कंपैरिजन। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में क्या क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगा, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आएगा, सेक्स रेशियो आएगा, फर्टिलिटी रेट आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा। इस हिसाब से कंपेयर करना, दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। सो क्वेश्चन में डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऐसे कंपेयर करना। ग्रोथ इंडिकेटर्स का कंपैरिजन है तो जीडीपी का कंपैरिजन करना। सेक्टरल है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस उसका करना। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के आपसे आपको कंपेयर करना है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टालिटी है, इयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है वो है, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जीडीपी पर कैपिटा, देन वाटर सोर्सेस, अच्छा वाटर कितने लोगों को मिलता है, सैनिटेशन अच्छा कहाँ, मतलब कितने परसेंटेज है। ओके, सो ऑल दोस आर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसमें से एक तरह का क्वेश्चन ये आता है कि मैचिंग करने का। मैचिंग करने का क्वेश्चन बहुत सारा मैंने देखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन। जैसे कि जी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसका ईयर दे देगा, उसको मैच करना है। रिफॉर्म्स ऑफ चाइना, उसका डेट दे देगा, ईयर दे देगा। रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। ओके, देन ग्रेट पॉलिटिकल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, चाइना में। 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है, 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान। पाकिस्तान। कल ये सब पढ़ा था हमने क्लास में। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर है, इंडिया में। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इफ यू कंपेयर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इट इज इन इंडिया। डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया कम है। ओके, सो ऐसे मैचिंग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ सकता है इस वाला ए वाला लेसन से। और ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी तो एक क्वेश्चन मैंने बोला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोला। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, वेरी रेयरली इट कम्स। ओके, और यहाँ पर एकदम इंट्रोडक्शन में, ये वाला चैप्टर के एकदम इंट्रोडक्शन में कुछ एसोसिएशन का नाम मेंशन है, जैसे कि सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, G8 कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, ब्रिक्स है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, रीजियनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। इनको स्ट्रेंथ के लिए कुछ कंट्रीज एक साथ आते हैं। You know, in order to neighbor countries में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, that we should know that, और कैसा मतलब, so we should have a union. For that purpose, many unions are made like South Asia Association of Regional Countries, European Union, ASEAN, G8, G20, BRICS, etc. So many unions are there. So जो पैराग्राफ का वो इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ के देख लेना. All these names you will get. Okay. What are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economy? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मिलेगा. अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्रीज क्या क्या करते हैं. अभी इंडिया को स्ट्रेंथन करना है अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी को. इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनियन मैंने बोला ना, ASEAN, SAARC, G20, ब्रिक्स, पहले उसमें मेंबरशिप लो, है ना. तो नेशंस आर फॉर्मिंग वेरियस रीजियनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप बन रहे स्ट्रेंथ के लिए, वो करना पड़ेगा. If we have to strengthen our domestic economy, we have to form. Nations are forming what the group like SAARC, European Union, G8, G20, BRICS क्यों बन रहा है, ये सब क्यों बन रहा है? To strengthen our domestic economy. Okay, और हम economic reforms, we have liberalized our economy, decreasing the government interference in economic activities. ये करना पड़ेगा. इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का
वो पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ गया? हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट, दैट वी हैव टू डू। डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट एल्स वी हैव टू डू? वी हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, वी हैव टू लिबरलाइज आवर इकोनॉमी। 1991 में हमने लिबरलाइज किया, 78 में चाइना ने किया, 88 में पाकिस्तान ने किया। वी हैव टू लिबरलाइज द इकोनॉमी टू स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट. Okay, so the nations are opening up the economy for the process of globalization. ये करना पड़ेगा to strengthen our economy. So this answer you will get from the introduction paragraph. Introduction paragraph में ये सब union का नाम है. So the question in this case, what is the question? What are the means? What this nation trying? How the nation is trying to strengthen their own domestic economy? अपने इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्रीज क्या क्या करते हैं? दे फॉर्म देयर यूनियन, देन लिबरलाइजेशन कर रहे हैं और ओपनिंग अप देयर इकोनॉमी, ये सब कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, उनको इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने के लिए. सो दिस वे द क्वेश्चन विल कम. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, easy but important. So that's it. That's all for today. Sairam and take care. Any doubt you can discuss now. If you don't have any doubt, you can meet, leave the meet.